Lutfi Hashmi, the host of today's program, is much delighted to offer a hearty welcome to all the people gathered here to the function of Zainabia PU Composite College, Alipur. We start every program with the recitation of Quran Pak. Let's unite our minds and souls in the presence of God to seek His abundant blessing. I invite Ilahi and Mehek of class 10 for the recitation of Quran Pak. Welcome them with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Jazakallah. A word of heart. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, the most gracious, compassionate and the most merciful. Respected guests, beloved chairman, esteemed faculty and my dear fellows. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, on this precious occasion, I, Sayyidama Sumibanu of PU2 take privilege to extend warmest greetings to the most accomplished personalities whose achievements are second to none and who had achieved great success. We are so fortunate to have our chief guest whose expertise and insights will provide a valuable learning to us. So, it gives me a great pleasure to welcome our admired chief guest, Professor S.M. Raza from Mumbai and an orator of Channel Wind, director at the Canada Institute of Terror, motivational speaker and presenter of Wind TV program Kamyabi Ke Raaste. I welcome you, sir. It's my privilege to welcome such a noble personality as our guest, none other than Dr. Nakir Raza Sayyid Musawi, Principal of Noble School, Alipur. I welcome you, It's my gratitude to welcome the most encouraging chairman, Mr. M.Z. Hussain, sir. He has not only guided us to the successful path, but also encouraged the students to develop and be bright. He is also recognized as member of the institution. I welcome you, sir. It's my genial welcome to our esteemed teachers and faculty members whose dedication and commitment to our education are genuinely appreciated, and we are grateful for the opportunity to learn from you. I welcome you all. At last, but not the least, I extend my thankful welcome to all the students and the Zainabian stars of this institution. I welcome you all, and I hope you shall learn a lot from the invited dignitaries. Thank you, one and all. Thank you, Masime. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was an Islamic leader who is considered as the messenger of Allah. He was the last prophet of Islam sent by Allah.
अल्लाह के महबूब है प्यारे हैं मोहम्मद, कौनैन के आँखों के सितारे हैं मोहम्मद, ये नाज है हमको के हमारे हैं मोहम्मद. With this, I would like to welcome Ziba and Adifi of P2 to recite the Naat of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome them with a loud salawat. जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है. अल्लाह का फरमान अलम नशर लक सदरक, मंसूब है जिसे वरफ़अना लक ज़िक्रक. जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है. अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मक़दूम मुराबी है वही वाली कुल है. उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है. मुज़म्मिल यासीन मुद्दस्सिर ताहा, क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा. क्या शान है इसकी, क्या शान है उसकी कि जो उम्मी लक़बी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है. MashaAllah. Zainab bint Ali was recognized among Muslim believers as being a devout and committed worshipper. She was the greatest and the most respectable lady of Islam. इसलिए शायर क्या खूब कहता है, अली को सब्र के बदले मिले हुसैन और हसन, अली को सब्र के बदले मिले हुसैन और हसन, अली को फख्र के बदले अता हुई ज़ैनब. हवाले हवाले करके खुदाई ये कह रहा है खुदा, तेरी रिदा की ना कीमत अदा हुई ज़ैनब, तेरी रिदा की ना कीमत अदा हुई ज़ैनब. With this, I call upon Halifa Zainab of P2 to enlighten the life of Bibi Zainab Salamullahi alaiha. Welcome her by reciting a loud salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. All praise is due to Almighty Allah who has blessed us a beautiful day with great personalities in our institution. I heartfully thank the management, staff and teachers of Zainab Composite Pure College for giving me this opportunity to speak about the great lady of Islam, the shining sun in the history of Islam and of humanity. Shahzadi Zainab, the eldest daughter of Maula Ali and Khatun Jannat Janab Fatima Zahra Salamullahi alaiha, and granddaughter of Chief of Prophets Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bibi Zainab was an exemplary woman with a great ability, intelligence, knowledge, courage, bravery and determination. The name Zainab is derived from two words, Zain and Nab, which means the adornment of her father. इस तकरीर को एक शेर के जरिए से आगे बढ़ाना चाहती हूँ जो बीबी ज़ैनब के घराने की शान में लिखा हुआ है कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ज़ैनब के नाना जान मोहम्मद रसूल है, नानी खदीजा बाप अली माँ बतूल है, भाई हसन हुसैन जो इस्मत के फूल हैं, सब इन्नमा युरीद की शान नुज़ूल है, ज़ैनब के दादा जान का इमरान नाम है, ज़ैनब की दादी फातिमा आली मकाम है, ज़ैनब की दादी फातिमा आली मकाम है. The history of Karbala is based on two pillars, the raising of Imam Hussain alayhi salam and the raising of Bibi Zainab salam alayhi. Bibi Zainab along with her two sons Janabe On and Janabe Muhammad went to the journey of Islam. After the martyrdom of her brother and two sons, she said, O Lord, accept our humble sacrifice to you. Praise to Allah and may the blessings be upon Muhammad and his progeny. O people of Kufa, you are hypocrites and deceitful. You fail to be sorry for the death of my brother and his companions. May you always shed tears. By Allah, you deserve lasting sorrows instead of joy. Shames on you. Your hands are improved with the blood of son of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Her furious words provoked the people of Kufa. She also delivered a furious sermon in the court of Khalid. She said, I fear no one but Allah. Make whatever evil plots you can. Blazes are waiting for you hereafter. You will be accountable for your atrocities. Bibi Zainab वो किरदार है, वो शख्सियत है, वो कुर्बानी है कि अगर ज़ैनब ना होती तो 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी के दिन इस्लाम तमाम हो गया होता. बीबी ज़ैनब मोहसिन इस्लाम है कि जिसके सबब से तौहीद, नबूवत, इमामत और विलायत को मकाम मिला. शायर क्या खूब कहते हैं, ज़ैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है, ज़ैनब इमामतों की अमानत का नाम है, ज़ैनब अली के खून की तहारत का नाम है, ज़ैनब हुसैनियत की ज़रूरत का नाम है. माना वजूद शाह में पूरी है करबला, ज़ैनब अगर न हो तो अधूरी है करबला, ज़ैनब अगर न हो तो अधूरी है करबला. अब जनाब ज़ैनब के चंद जुमलों को पेश करना चाहती हूँ कि जिहाद भी इबादत है. जनाब सरवर कायनात ने फरमाया, जालिम व जाबिर के सामने कलमा हक को बयान करना सबसे बड़ा जिहाद है और करबला में सबसे बड़ा जालिम यजीद और सबसे बड़ी मुजाहिदा नवासी रसूल जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा. किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हुसैन नाम है इस्लाम को बचाने का, हुसैन नाम है इस्लाम को बचाने का, हुसैनियत को बचाने का नाम है ज़ैनब, हुसैनियत को बचाने का नाम है ज़ैनब. बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ऐ यजीद, हुकूमत तेरी, तख्त तेरा, सिक्का तेरा, ताज तेरा, लश्कर तेरा, फौज तेरी, महल तेरा, लेकिन फैसला मेरा. खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है. ऐ यजीद, तू मिट जाएगा, हमारे तस्करा बाकी रहेगा. अब जरा गौर फरमाइएगा, यजीद था, हुसैन है, जो मिट गया वो यजीद था, जो बाकी है वो हुसैन है. शायर क्या खूब कहते हैं, मिलता नहीं था कोई सहारा यजीद को, ज़ैनब ने इस तरह से उजाड़ा यजीद को. खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए कुतुबों की जुल्फ़कार से मारा यजीद को, कुतुबों की जुल्फ़कार से मारा यजीद को. Bibi Zainab, even after facing many struggles in her life, with a tone full of pride and power, indicating her faith and submissions towards Allah, said, "Ma araitu illa jamila." I saw nothing but beauty in them. मैंने खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं देखा. शहजादी ज़ैनब saw beauty despite losing everything. She never viewed it as a loss. She viewed it as a will and sacrifice to Allah to make Islam vibrant and strong. शायर क्या खूब कहते हैं, ज़ैनब फिरोए दीन थी, दिन का उसूल थी, हर कदम पे सूरत बिन्ते रसूल थी, सब्र और रिज़ा की राह में मिसले बतूल थी, गुलज़ारे अहले बैत थी, खुशबू थी, फूल थी. ज़ैनब कहीं हुसैन कहीं पर हसन बनी, कहने को एक तन था मगर पंजतन बनी, कहने को एक तन था मगर पंजतन बनी. Shahzadi Zainab taught us that hijab does not cover up woman's weakness. Rather, it displays her strength, commitment and confidence which is built out of love of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, we Zainabians are so proud that we study in an institution which is named after the great lady of Islam. At last, our salutations to Janabi Shahzadi Zainab salam alaiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa salam. Thank you all.
It's an honor to have such a great personality as today's chief guest, who is going to address this gathering with his graceful words. I request today's guest, Professor Mr. S. M. Prasad sir, to enlighten us with your graceful words. Welcoming with a big round of applause. अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के मैं नाम से कहता हूँ, इब्तिदा रहमान और रहीम है वो रब्बे दूसरा। ख़त्म रसूल मोहम्मद उम्मी पे हो सलाम, जिनका तमाम खल्क़ के वाजिब है एहतराम। मेरा सलाम आले रसूल नाम पर जो है अली व फ़ातिमा हसनैन खुशसैर। चार साल के बाद दोबारा से इस स्कूल में आने का मौका मिला है। परवरदिगार आलम का शुक्र है और वुमेन एम्पावरमेंट से मिलने का मौका मिल रहा है। So you are the reflection of the society. And I can say you are the root of the society basically. आपके जिम्मे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। यदि आप बेटी हैं, कल किसी फैमिली को आपको संभालना है, आगे मुल्क को आगे बढ़ाना है। और मैं ये मानता हूं कि अगर किसी मुल्क, किसी समाज, अगर किसी घर की लेडी अगर पढ़ी लिखी हो तो सबसे मजबूत समाज, सबसे मजबूत लेडी, सबसे मजबूत कंट्री, सबसे मजबूत घर वही घर है। सो आपको मजबूत करना है। आज भी समाज की बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जो खत्म नहीं हुई। आपको सेल्फ डिपेंडेंट होने के डायरेक्शन में बढ़ना है। और कितना सही एग्जाम्पल अभी मैं जनाब ज़ैनब के सिलसिले से सुन रहा था आपके दरमियान। आपको उनका रिफ्लेक्शन बन के दिखाना है। तो आपको एक लाइफ अपने डिटर्मिनेशन के साथ जीना है, एक प्लानिंग के साथ जीना है। और प्लानिंग ही नहीं करना है बल्कि उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना है। दुनिया बदल रही है और बड़ी तेजी से बदल रही है। आपको दुनिया की रफ्तार को देखते हुए अपने आप को बदलना है, कोशिश करना है, प्लान करना है, आगे फ्यूचर में क्या करना है उसको एक्सप्लोर करना है और फिर उसकी तरफ एक हिम्मत से, इंस्पिरेशन, जेल, मोटिवेशन, पूरी एनर्जी के साथ बढ़ने की कोशिश करना है। जिंदगी में सबसे आसान अगर कोई काम है तो पढ़ना है, बस कंसंट्रेशन के साथ। स्कूल से घर लौटने के बाद एटलीस्ट जो सेल्फ स्टडी का ड्यूरेशन उसको कंटिन्यूअस मेंटेन करने की कोशिश करना। लड़कियों के सिलसिले में मैंने देखा है, क्योंकि मैं ज्यादातर साइंस स्ट्रीम के बच्चों के साथ अटैच रहता हूं। अगर मेडिकल साइंस की मैं बात करूं तो आज द गर्ल्स आर इन प्रिडोमिनेशन। When I see a section of medical science, out of 100 students, I found at least 75 girls are there. 10th class बोर्ड टॉपर्स की बात मैं कर रहा हूं। CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, किसी भी बोर्ड की बात मैं कर रहा हूं, टॉपर्स की बात कर रहा हूं। Among toppers, you are the leaders. Girls are predominating. तो उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाना है। और वंस अगर एक बार लाइफ में आपने कोई एम अगर डिसाइड कर लिया, उस एम को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करना है। मैंने रिसोर्सेस के बिना छोटे छोटे गांव से ऐसे बच्चों को निकलते मैंने देखा है, सिविल सर्विसेज में, लॉ के एग्जाम्स में, बैंक के एग्जाम्स में, किसी भी कंपटीशन में,
जिनके घर पे इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब, फैन जैसी कोई चीज नहीं होगी, जो आपके जैसे ऑर्गेनाइज स्कूल में भी नहीं पहुंच पाते, लेकिन वहां उनको पहुंचाती कौन सी चीज है? सिर्फ एक चीज है, डिटर्मिनेशन। एक कुछ पाने का ज़ील, एक इंथुजियाज्म, उसे अलाइव रखिए हमेशा लाइफ में। उसी से सारी चीजें आप हासिल करेंगे। हो सकता है आज जितनी बातें मैं आपको बताऊं उसमें मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स यू नो। चीजें बदलती कहां से हैं? अच्छी चीजों को अप्लाई करने से लाइफ में। तो लाइफ में जो अच्छी बातें आपको बताई जा रही हैं फ्रॉम योर क्लास टीचर, फ्रॉम योर रिलेटिव्स, जो अच्छे लोग जो आपसे मिलते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें आपसे करते हैं, उन बातों को लाइफ पे अप्लाई करना है। देखिए आगे चल के एजुकेशन बहुत 5 साल के अंदर एजुकेशन में बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी। जहां आज आपको एजुकेशन का सिस्टम दिख रहा है, ऐसे 5 साल के बाद यहां नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जैसी कोई चीज नहीं होगी। ग्रेजुएशन जो 3 साल का आप कर रहे थे अब 4 साल का होने जा रहा है। आगे चल के नए नए वोकेशनल कोर्सेज लॉन्च होंगे। आने वाला जमाना मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इसका जमाना आने वाला है। साइकोलॉजी, इसका जमाना आने वाला है। अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो ऐसी चीजों के बारे में आपको सोचना है। और बिलीव में मुश्किल कुछ नहीं होता है, मुश्किल सोच से कोई चीज बनती है। छोटी क्लास में आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि इंसान जैसा सोचता है बॉडी वैसे ही हार्मोन्स जनरेट करती है, माइंड वैसे ही सिग्नल देता है। सो लाइफ में कभी नेगेटिव नहीं सोचना, कोई चीज ना अचीव हो ये सोचना ही नहीं है। आपने बहुत बार सड़क के किनारे देखा होगा 2 बांस के बड़े बड़े बम्बूज लगे होते हैं, एक रस्सी बंधी होती है और एक छोटी सी लड़की उस रस्सी पे चल रही होती है। बताया आपके लिए मुश्किल है, आसान है, लेकिन उसके लिए आसान कैसे बना? प्रैक्टिस। सब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट। कोई सब्जेक्ट अगर मुश्किल लग रहा है उसके साथ अटैच होने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू रिवाइज मोर एंड मोर टाइम। जैसे मैं मैथ्स ही के सिलसिले में आपको कहूं, मुझे 24 साल हो गए मैथ सीखते हुए, मैं भी मैथ थोड़ा सीखता हूं, लेकिन मुझे दुनिया के सबसे आसान अगर कोई शय या सबसे आसान कोई सब्जेक्ट लगता है दैट इज मैथमेटिक्स। सबसे आसान, क्योंकि इज इंटरेस्टिंग बेसिकली। तो जब भी मैथ्स की बुक, साइंस की बुक, इकोनॉमिक्स, इस तरह की किताबों के साथ जब आप अटैच हो तो एकदम ये सोच के ये चीजें समझी जा सकती हैं। ये मुश्किल नहीं है, हमसे पहले भी किसी ने इसे किया। देखिए लाइफ कैसे चेंज हो रही है। मैं तब्दीली की बात कर रहा था। यू सरप्राइज टू नो, यहां मैंने जैसे अभी पता किया मुजम्मिल साहब से 9 to 12 के आप बच्चे हैं। मैं आज से 7 साल पहले का एक वाकया आपको दिल्ली का बता रहा हूं। आई वॉज इन्वाइटेड इन ए प्रोग्राम, वहां पे एक किताब लॉन्च हो रही थी। द बुक वॉज हैकर्स एंड क्रैकर्स, 280 पेज book. The author was Sahil Khan. I was the participant of that program. Are you surprised to know, all of you surprised to know, the author of that book, Sahil Khan, was the student of class 8. So see, अगर 8th क्लास का बच्चा एक किताब लिख सकता है तो why not you? उसके अंदर डिफरेंट क्या है आपसे? You have 2 hands, 2 legs, a mind, 2 eyes, a nose. Each and everything is identical. Each and everything is identical. Only the difference is perception, the motivation, the zeal, the enthusiasm, the thinking, the thought process. तो कोशिश करना है। और
नई नई चीजें अभी एक्सप्लोर हो रही हैं। कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है। मेरे पास ह्यूमैनिटीज है, मेरे पास आर्ट्स है, मेरे पास ऑप्शन साइंस या कॉमर्स के बच्चों से कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहां पे अभी विद इन अ मिनट ऐसे करियर ऑप्शन बता सकता हूं जो ह्यूमैनिटीज से आप कर सकते हो। अगर आपको IAS बनना है, IPS बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, यू कैन गो थ्रू आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, ऑल थ्री। यू विल बिकम एन IAS ऑफिसर। अगर आपको लॉयर बनना है, ह्यूमैनिटीज से आप जा सकते हो। अगर आपको बैंक में मैनेजर बनना है, ह्यूमैनिटीज से आप जा सकते हो। स्कूल में टीचर बनना है, कॉलेज में लेक्चरर एंड प्रोफेसर बनना है, यू कैन गो थ्रू ह्यूमैनिटीज। मोस्ट ऑफ द थिंग इज कॉमन टू ऑल स्ट्रीम, चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप चाहें इस तरह के एंट्रेंस को क्वालिफाई करके आप बेहतरीन एक लाइफ में ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। बट चीजें कहां से मिटलाइज होती हैं, पहले से आपको पता करना है कि क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं। देखिए दुनिया कैसे बदल रही है। बार बार जो मैं वर्ड बोल रहा हूं आपको, शायद आपने अपने बचपने में जब आप क्लास 3rd या 4th में रहे होंगे तो आपने टेप रिकॉर्डर का कैसेट देखा होगा, याद है आपको? आज कहीं दिखाई देता है? आपने हार्ड डिस्क देखा होगा, याद है आपको? फ्लॉपी देखी होगी आपने, आज आपको कहीं दिखाई देता है? नहीं। दुनिया बहुत फास्ट स्पीड से बदल रही है। आने वाला जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, AI का है आने वाला जमाना। आने वाला जमाना इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स में एक्सेल करने की कोशिश करें। आने वाला जमाना लैंग्वेज का है। मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा था, क्लैट खास तौर से आप बच्चों को बोल के जाना चाहता हूं। 12th किसी भी स्ट्रीम का बच्चा, आइदर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस, 12th के बाद एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की बॉडी, दैट इज नोन एज क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एग्जामिनेशन जरूर फेस करें आप। क्लैट को क्वालिफाई करके 4 या 5 साल का कोर्स करके आप बेहतरीन लॉयर बन सकते हैं आप, और एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके हाथ में आ सकता है। सो थिंक अबाउट क्लैट। तब्दीली में आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि 12th के बाद लाइफ में कोई भी करियर ऑप्शन लेना होगा आपको, एक सिंगल डोर जो आपके सामने, जिसे ओपन करके आपको आगे बढ़ना है, दैट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सिंपल वर्ड्स में मैं बताना चाहता हूं कि व्हाट इज ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते क्या है और स्कूल एग्जामिनेशन से ये कैसे डिफरेंट है। जनरली PUC या 10th बोर्ड की जब आप एग्जाम देते हो, what is the paper pattern? You have 3 hours in your hand and you have 30 or 35 questions in your paper. Means 180 minutes, 3 hours में 180 minutes, और 180 मिनट में आपको 45 क्वेश्चन करना है। लेकिन जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कंपटीशन की तरफ जब आप जाओगे, लेटेस्ट से अगर आपको डॉक्टर बनना है, 3 आवर्स में 180 मिनट में बोर्ड में 35 क्वेश्चन करना होता है। डॉक्टर बनने के लिए 3 आवर्स में 180 क्वेश्चन करना होगा। एक अच्छा इंजीनियर अगर आपको बनना है, IITs अगर आपको जाना है, 3 आवर्स में आपको 90 क्वेश्चंस करने हैं। स्कूल एग्जामिनेशन में कितने करने हैं? 30 या 35। क्लैट का मैं जिक्र कर रहा था, आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। 60 यानी 120 मिनट, 120 क्वेश्चन। सो दिस इज कॉम्पिटिशन। तो लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए अगर कंपटीशन देना है, और कंपटीशन का डिफरेंस स्कूल एग्जामिनेशन से एक ह्यूज डिफरेंस है, तो आप मुझे बताएं कि कंपटीशन के बारे में आज आपको सोचना चाहिए या आज से 2 साल के बाद? आज सोचना। और आज से उसके बारे में
आपको एक्सप्लोर करना है, अपने टीचर से पूछना है। सेकेंड डिफरेंस, स्कूल में अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और आपने उस क्वेश्चन का आंसर दिया और वो आंसर रॉन्ग हुआ तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 0। या अगर आपने किसी क्वेश्चन में 10 स्टेप्स लिखने हैं, अगर आपने 5 स्टेप लिखा, माइट बी यू गेट पार्शियल मार्क्स, आउट ऑफ 5 यू गेट 2 और 3। बट यू सरप्राइज टू नो, अगर कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आपने किसी क्वेश्चन को रॉन्ग किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, दैट इज नेगेटिव मार्किंग। मींस अगर आपने 4 क्वेश्चन करेक्ट किए, 10 marks each, let us say you get 40 marks, and apart from that अगर आपने 5 क्वेश्चन रॉन्ग किए तो इस 40 में से 5 मार्क्स डिडक्ट होंगे। So this is competition. The third thing, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस करोगे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए, तो वहां बहुत लंबी चौड़ी एक भीड़ होगी। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर बनना है, ऑल ओवर इंडिया 90,000 सीट्स आर देयर फॉर MBBS। लेकिन ऑल ऑफ यू सरप्राइज टू नो कि उस 90,000 सीट्स को हासिल करने के लिए प्रीवियस ईयर 20 लाख 20 लाख बच्चों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया। लेट्स थिंक अबाउट इंजीनियरिंग। When you want to go to IIT, there are only 11,500 seats in IITs. 10 lakh students fighting for IIT. So, अभी से आई ओपन, अभी से, आज से होना है। आज से सेल्फ स्टडी का ड्यूरेशन अपना मेंटेन करना है। जैसे मैंने बताया कि दुनिया बदल रही है, डेफिनेशंस भी बदल रहे हैं। Practice makes a man? No, it's change. A regular practice makes a man perfect. Not practice. A regular practice. Daily. Success का सबसे important point है daily 3 to 4 hours self study. Daily. Without any gap. 2 साल विदाउट एनी गैप, स्कूल के साथ, स्कूल की स्टडी को सिंक्रोनाइज करके घर पे सेल्फ स्टडी करें। बिलीव मी, यू कैन क्रैक एनी कॉम्पिटिशन, एनी, आइदर सिविल सर्विसेज और क्लैट और IITs or I can say NDA or CDS, any entrance you can try. The main thing is self study. And now डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाना। डिजिटल प्लेटफॉर्म से अलग होना है। लीव मोबाइल एंड ऑल दीज थिंग्स, इमीडिएट लीव इट। टीचर्स आर हियर, आई एम जस्ट गिविंग अ सर्वे ऑफ WHO। 2045 तक ये स्टडी दी जा रही है कि वर्ल्ड की लगभग 50% पॉपुलेशन ब्लाइंडनेस का शिकार होगी ड्यू टू स्क्रीन यूज टाइम। सो सेव योर लाइफ, सेव योर आईज, सेव योर प्रेशियस टाइम। इन चीजों से बाहर निकालना है अपने आप को। बहुत सारी ऐसी बातें मैं कर रहा हूं जो आप जानते हैं। आप मुझे बताएं, कभी कभी आप पढ़ने के लिए मोबाइल का यूज करते हैं, YouTube पे कोई वीडियोस जाके आप देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कितना हार्मफुल है वो। जब भी आप स्क्रीन पे किसी चीज को देख रहे होते हैं तो 2 ही चीज एक साथ होती है, विजुअलाइजेशन एंड लिसनिंग। थिंकिंग इज कंप्लीटली एब्सेंट। अगर आप वीडियो पे किसी चीज को देख रहे हो तो आप स्क्रॉल कर रहे हो स्क्रीन को, चीजें आगे स्क्रॉल हो रही हैं और आप सुन रहे हो। माइंड में कहीं से कोई स्ट्रगल नाम की चीज उस क्वेश्चन के लिए डेवलप नहीं होता है।
आप मुझे बताएं, एग्जामिनेशन में आपको YouTube के वीडियो के साथ पेपर फेस करना है या अपने माइंड के साथ? सो किताब के क्वेश्चन के साथ माइंड को फाइटिंग स्पिरिट में लाने की कोशिश करो। बुक की एक एक लाइन पढ़ के उसको सोचने की कोशिश करो, और देखो कितना ब्यूटीफुल कंसंट्रेशन गॉड ने आपको दिया है। सी द एग्जाम्पल, इतना बेहतरीन कंसंट्रेशन अल्लाह ने आपको दिया है। अगर वो कंसंट्रेशन आप कहीं और से निकाल के किताब पे लगाएं, you become an IAS officer. See the example. घर पे मोबाइल में कभी आप बबल शूटर का गेम खेलते हो, आपको पता चलता है कि आपके लेफ्ट से कौन आ रहा है, राइट से कौन जा रहा है, आगे कौन खड़ा हुआ है, पीछे कौन पुकार रहा है? No. This is concentration. काश इसको मोबाइल से निकालना और कहां लाके लगाना है? किताब। You have in yourself, आपके पास ये है। This is inbuilt capacity given by the nature. ये आपकी इंटरनल कैपेसिटी है जो अल्लाह ने आपको दी है, लेकिन आप कहां लगा रहे हो इसको? ऐसी जगह पे जहां से लाइफ आपकी डेविएट होगी, जहां से डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएगा। सो इसको हटाना है, किताबों के साथ लाके अटैच करना है। अपने अंदर विनिंग स्पिरिट डेवलप करना है। आपने लूज का वर्ड माइंड से निकाल के फेंकना है। प्रेशर, देयर इज नो प्रेशर इन लाइफ। पढ़ना, कभी कभी मैंने सुना है मैक्सिमम बच्चे पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। मैं कह रहा हूं अपनी लाइफ में, अपनी डिक्शनरी में प्रेशर का वर्ड आज से निकाल के बाहर फेंकिए, उसको स्ट्रगल से रिप्लेस कीजिए। I am struggling to build my future. So there is no pressure. Struggling to keep your thoughts alive. लाइफ में क्या पाना है, क्या करना है, उसके तरफ एकदम मोटिवेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। अच्छे से पढ़ें, और डेफिनेटली मैं यहां आप लोगों का जो एक अपीयरेंस देख रहा हूं, जो बॉडी लैंग्वेज में देख रहा हूं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, अच्छे से घर पे पढ़ाई करें। हर बच्चा यहां एक कामयाब बच्चा है। आप में हर बच्चा एक बेहतरीन सेट ऑफ माइंड, एक बेहतरीन कैपेसिटी के साथ इस दुनिया में आया। लाइफ में कुछ आपके, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, नकील साहब से जिक्र कर रहा था, गॉड ने आपको लाइफ किसी मकसद के साथ दिया है। उस मकसद पे आपको ध्यान रखना है। जल्दी जल्दी से 2-3 बच्चों से मैं बात करता हूं क्योंकि मुझे निकलना है, और मैं चाहता हूं कि आप बताएं। यस बेटा, आप। यस यू। माइक क्विकली, व्हाट्स योर नेम? What do you want to become? How to become an IAS officer? By doing hard work. Do you know the path how to become an IAS officer? Yes, sir. I'm motivating myself by seeing many videos in YouTube about introduction and how they have done their hard work to crack their exams. Listen quickly. IAS officer, Indian Administrative Services. You know, district magistrate of your district. They are the IAS officer. पहले तो IAS बनने का रास्ता, IAS बनने के लिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन करना है। What is the meaning of graduation? PUC के बाद आपको ग्रेजुएट 3 to 4 years, either साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज, किसी से भी आपको ग्रेजुएशन करना है। उसके बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है। एग्जामिनेशन का पहला राउंड उसको हम बोलते हैं प्रीलिम एग्जामिनेशन। दे हैव 2 पेपर्स। दोनों पेपर में, एक पेपर में पासिंग मार्क्स और एक से कट ऑफ बनती है। उस एग्जाम को पहले क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद सेकेंड स्टेज का एग्जाम है जिसको हम बोलते हैं IAS मेंस एग्जामिनेशन। IAS मेंस एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट 7 to 9 पेपर्स आपको फेस करने हैं। एटलीस्ट 7 पेपर्स, 9 भी पेपर्स आ सकते हैं जिसमें जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं,
ऐसे राइटिंग का पेपर होता है। उस मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू राउंड होता है। उस इंटरव्यू राउंड को क्वालिफाई करने के बाद देन कट ऑफ बनती है, और उस कट ऑफ में जो सबसे टॉप के बच्चे होते हैं उनको आईएएस का वर्क करने का उनको एज आईएएस मौका मिलता है। और आईएएस एग्जाम 2250 मार्क्स का होता है, 2250 मार्क्स का ये पेपर होता है, राइट? यस यू, व्हाट्स योर नेम? यस, क्या बनना चाहती हैं आप? जी, ओके जाकिरा, राइट। यस यू बेटा, यस गुड गर्ल, आप रिस्पेक्ट वाली बच्ची जी, व्हाट्स योर नेम? योर एम? डॉक्टर। हाउ टू बिकम अ डॉक्टर? नीट के लिए कैसे तैयारी करनी होगी शुरू से? पीयूसी में साइंस लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेना है आपको। नीट का एग्जामिनेशन देना है, मई के महीने में एग्जाम होता है। नीट में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 200 क्वेश्चंस। लिसन, 200 क्वेश्चन, 200 मिनट्स। उस 200 क्वेश्चन में 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 720 मार्क्स का पेपर होगा। एंड एक अच्छे कॉलेज में एमबीबीएस की सीट लेने के लिए आउट ऑफ 720 यू मस्ट हैव एटलीस्ट 570 आउट ऑफ 720 मार्क्स। सो डू कंसंट्रेट ऑन योर पीयूसी बुक्स and additionally take NCERT physics, chemistry and bio and read NCERT properly, right? Fine, quickly. Yes you, लेकिन भाई 5 मिनट और चलेगा बस। Yes, what's your name? Your name? Yeah, bank manager. How to become a bank manager? By hard work. एक मजदूर है, वो भी बहुत हार्ड वर्क करता है ना? एक रिक्शा पुलर वो भी हार्ड वर्क करता है, एक फार्मर वो भी एक हार्ड वर्क करता है। डायरेक्शनली हार्ड वर्क, या व्हाट द डायरेक्शन टू बिकम अ बैंक मैनेजर? लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर पीयूसी आपको ग्रेजुएशन करना है किसी भी सब्जेक्ट से। 10th तक की मैथ्स आपको अच्छी आनी चाहिए, मैथ्स एंड इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आपको बैंक पीओ का एग्जाम देना है। बैंक पीओ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके यू बिकम अ बैंक मैनेजर, राइट? तो आपको क्या करना है? ग्रेजुएशन आपको अच्छी क्या रखनी है? इंग्लिश है, मैथ्स, और एग्जाम कौन सा फेस करना है? बैंक पीओ, राइट? सो थैंक यू वेरी मच इंडीड, थैंक यू वेरी मच एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू एंड होप इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में बहुत अच्छा करेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली, अपने कम्युनिटी, अपने फ्यूचर, आई मीन कस्बे के लिए, अलीपुर के नाम के लिए, और परहैप्स अपने स्कूल के लिए, अपने आई मीन मुल्क के लिए अच्छे से मेहनत करें, कोशिश करें एंड होप यू डू वंडर्स इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. It was a thought-provoking speech. Cultivate the habit of being thankful for every good thing that comes to you and to give thanks continuously. Let me invite Millet Fatima of PU2 to deliver a vote of thanks. Welcome her with a big round of applause. Bismillahirrahmanirrahim. I begin in the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. Respected dignitaries, teachers and my dear friends, Assalamu alaikum. I, Sayyidah Minal Fatime of PU2, on behalf of our institution, I take an immense pleasure to thank you all on this occasion. It's an honor to be surrounded by special people and to be blessed in the fellowship of this precious occasion. I would like to express my deep sense of gratitude to our chief guest, Professor S.M. Raza Sahib, Director, Anand Career Institute, Counselor, Motivational Speaker, and presenter of a Win TV program, Kamyabi Ke Raaste. Truly you have inspired us with your words. Thank you, sir. This is for all of you.
All of you. I would like to express my gratitude to Dr. Nagirosa Syed, Director and Principal of Noble School Alipur, who gave us his precious time to join us here today. I thank you, sir. Further, I thank and express my gratitude to the teaching and non-teaching faculty and my friends and the management of our institution who showed some effort to successfully accomplish this occasion. Thank you, one and all. Thank you all for your All the best. Thank you. Hope